Hello dear students, you are welcome in this lecture session. Myself, Dr. Suman Sharma. Students, you know, at the last turn, I interact with you on the topic reduction of aldehydes and ketones. In the series of lectures on reduction, today I take another type of reduction process, that is reduction of carboxylic acids. So student, I start my lecture on the topic reduction of carboxylic acids. Now, the reduction of a carboxylic acid. The reaction happens in two stages. First, to form an aldehyde and then a primary alcohol, because lithium tetrahydroaluminate reacts rapidly with aldehyde. It is impossible to stop at the halfway stage, right? Equations for these reactions are usually written in a simplified form for UK a level purpose. The hydrogen in the equations represents hydrogen from a reducing agent, right? Because of the impossibility of stopping at the aldehyde, there isn't much point in giving an equation for the two separate stages, right? The overall reaction is RCOOH plus 4H, it gives RCH2OH plus water, right? R is hydrogen or a hydrocarbon group, right? For example, ethanoic acid will reduce to the primary alcohol ethanol. Here is the reaction. It is ethanoic acid plus 4H, it gives primary alcohol or ethanol and water, right? Now come to the next slide. Now carboxylic acids, acid halides, esters and amides are easily reduced by strong reducing agents such as lithium aluminium hydride LiAlH4. The carboxylic acids, acid halides and esters are reduced to alcohols, while the amide derivative is reduced to an amine, right? Most reductions of carboxylic acids lead to the formation of primary alcohol, right? It is the final product of the reduction of carboxylic acid, right? These reductions are normally carried out using a strong reducing agent such as lithium aluminium hydride LiAlH4, right? Now come to the next slide. Here is the reaction. It's a acid RCOOH. It reacts with lithium aluminium hydride in presence of ether is used as a solvent, and in presence of water it gives alcohol, right? Primary alcohol plus lithium hydroxide plus aluminium hydroxide, ठीक है ना, AlOH whole thrice, right? When R is replaced by any alkyl group, here is the example of acetic acid CH3COOH. 3 moles of acetic acid react with lithium aluminium hydride, ether used as a solvent, in presence of water it gives ethanol, right? CH3CH2OH plus LiOH plus AlOH whole thrice, right? तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन पर अल्कोहल बनते हैं, राइट? और ये जो रिएक्शन है ये
दो स्टेप्स के अंदर फॉलो होती है। पहली रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड बनता है और फिर एल्डिहाइड से हमको फाइनली इथेनॉल मिलता है, राइट। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। फिर हमने और भी एग्जाम्पल ले रखा है। इट इज़ प्रोपिएनोइक एसिड, सिमिलर रिएक्शन कंडीशन है एंड इट गिव्स प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल, राइट। और भी हमने जैसे यहाँ पर एरोमेटिक एसिड ले रखा है। इट इज़ बेंजोइक एसिड, C6H5COOH। सिमिलर रिएक्शन कंडीशंस फॉलो करते हैं तो यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल मिलता है, राइट। इट इज़ अ C6H5CH2OH, ये बेंजाइल अल्कोहल है, राइट। और भी यदि हम इसको एग्जांपल लेकर बता सकते हैं रिएक्शन को, इट इज़ फिनाइल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज CH3COOH. When 1H is replaced by phenyl group, then it is called phenyl acetic acid. It's react with the lithium aluminum hydride and H3O, right. It gives 2 phenyl ethanol, right. 2 पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप है एंड इट इज़ ethanol. CH3CH2OH is ethanol. When 1H is replaced by phenyl group, then the name of this product is 2-phenyl ethanol. और ये जो प्रोडक्ट है ये हमको 75% मिलता है, राइट। तो ये हमने रिएक्शंस दे करके बता रखा है आपको। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर आता है यू कैन ऑल्सो यूज़ डाइबोरेन B2H6 टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड्स टू अल्कोहल, ठीक है। B2H6 भी हम जो है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में ले सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, जिससे कि अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये हमने रिएक्शन देकर इसको बता रखा है। यहाँ पर क्या है, ये बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन जब BH3 इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन पानी और एसिडिक मीडियम में करवाई जाती है तो यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, राइट। यहाँ पर हमने और भी जो है वो रिएक्शन बता रखी है। इट्स अ एसिटिक एसिड, इट्स रिएक्ट विद B2H6 ईथर एंड इसका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो यहाँ पर इथेनॉल फॉर्म होता है। तो इट्स ऑल्सो अ रिड्यूसिंग एजेंट डाइबोरेन, ठीक, राइट। तो यहाँ पर भी हमको जो है वो अल्कोहल का जो है अल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अभी हमने जो है पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है जब उसका रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो फर्स्ट स्टेप के अंदर तो एल्डिहाइड बनता है, फिर फर्दर उसका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो हमको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। यहाँ पर हम इसको बता रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एलेंस एंड बोरेंस, राइट। ये यहाँ पर हमने इसको रिएक्शन देकर समझा रखा है। यहाँ पर हमको प्राइमरी अल्कोहल बन गया। ये क्या है आपका जो है ये जो है लॉन्ग चेन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर हमको प्राइमरी अल्कोहल मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो है इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड काम में ले रखे हैं। सिमिलर जब कंडीशन फॉलो होती है तो यहाँ पर जो दोनों जो आपका जो है COH ग्रुप है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू CH2OH यानी प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। इन दिस रिडक्शन एसिड फर्स्ट कन्वर्ट्स इनटू एल्डिहाइड, ठीक है ना। पहले क्या होता है, एसिड का कन्वर्जन एल्डिहाइड के अंदर होता है। इट्स RCOOLite, राइट, H एंड AlH3, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर जो है फाइनली जो प्रोडक्ट होता है वो हमको यहाँ पर ये एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो गया। इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है ना। इट्स अ एल्डिहाइड, फिर इसका फर्दर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन होती है, हाइड्रोलिसिस होता है तो हमको प्राइमरी अल्कोहल मिल जाता है, राइट। तो बेसिक जो कंसेप्ट है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें फर्स्ट स्टेप के अंदर एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है और फाइनली हमको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, राइट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर आती है जैसे स्कीम 1, इसमें क्या है, एसिड्स आर द लीस्ट रिएक्टिव अमंग एसिड डेरिवेटिव्स, राइट, बिकॉज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज द सेम एज दैट इन
order of nucleophilic addition followed by elimination reaction on acid derivatives, right। यहाँ पर हमने जो है इनका जो एलिमिनेशन जो है प्रोसेस जो है एसिड डेरिवेटिव्स का बता रखा है कि ये किस तरह से इंक्रीज होगा यहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस, राइट। इट इज़ RCOCl, उसकी जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू RCOOCOR, इसकी उससे कम होगी। फिर RCOOR उसकी उससे कम होगी। फिर RCONH2 उसकी उससे कम होगी। एंड RCOOH इसकी जो है रिएक्टिविटी सबसे डाउन होगी, राइट। दस कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस, ठीक है ना। ये जो है कार्बोक्सिलिक जो एसिड है उनका जो रिडक्शन है वो काफ़ी मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है अमंग एसिड डेरिवेटिव्स, और जितने भी आपके एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनके कंपैरिजन में, राइट। दस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन बी यूज टू रिड्यूस एसिड्स, बट दिस कैन require vigorous condition and is also not selective because lithium aluminum hydride is a powerful reducing agent, right। यहाँ पर हमने इसको रिएक्शन दे करके बता रखा है, ठीक है ना। इट्स अ पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, राइट। यहाँ पर हमको ये पैरा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल मिलता है, ठीक है। सिमिलर रिएक्शन कंडीशन फॉलो की जाती हैं। ये जो हमने सब्स्टिट्यूटेड जो है वो एसिड ले रखा है, ठीक है। यहाँ पर भी हमको जो है दिस COH इज़ कन्वर्टेड इनटू CH2OH, यहाँ पर ये प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। और सिमिलर रिएक्शन जो है वो एमाइड के साथ फॉलो होती है। दिस जो है CO इज़ कन्वर्टेड इनटू CH2, राइट। तो ये हमने इसकी स्कीम 1 बता रखी है for acids and derivative of acid carboxylic acids, right, agents, and reduces most of the commonly encountered organic functional groups such as carbonyl, ester, amide, acid chloride, aliphatic, nitro, cyanide and epoxide, etc., right। Allenes also reduce acid and acid derivatives. The order of reactivity is almost the exact opposite, ठीक है ना। Allenes also reduce acid right, allenes also reduce acid and acid derivatives. The order of the reactivity is almost the exact opposite, ठीक है ना। इसकी जो order of reactivity होती है वो बिल्कुल opposite होती है। यहाँ पर जो है acid जो है they are much more reactive than the amide derivative, than the ester derivative and then the chloride derivative of carboxylic acids, right। This is because the crucial step is the formation of a complex in which the allene acts as an electrophile, right, so that it is the capacity for donation of an electron pair by an organic compound that is important, right। यहाँ पर जो है हमने इसको रिएक्शन को बता रखा है, ठीक है। ये यहाँ पर एलेंस जो है वो काम में ले रखे हैं, और ये इसका पूरा जो है रिएक्शन हमने मैकेनिज़्म यहाँ पर समझा रखा है, राइट। यहाँ पर भी जो है फर्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर तो एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है और फर्दर हमको अल्कोहल मिल जाते हैं, राइट। मगर यहाँ पर जो रिएक्टिविटी प्रोसेस है वो अपोजिट होता है। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। The most important alane is diisobutyl aluminum hydride, DIBAL, right, diisobutyl aluminum hydride। ये हमने यहाँ पर इसको रिएक्शन देकर बता रखा है। जब हम जो है इस एसिड की रिएक्शन डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं, बेंजीन एज ए सॉल्वेंट काम में लेते हैं और इस रिएक्शन को 25 डिग्री पर
25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है तो हमको प्राइमरी अल्कोहल्स मिलते हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो एलेन्स हैं उनकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए, वो काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट होती है, और रिडक्शन जो प्रोसेस है वो इस कैटलिस्ट को काम में लेने से बढ़ जाता है, राइट। डाइबोरेन इज़ अ यूजफुल रिएजेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ एसिड्स टू प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है ना। जो डाइबोरेन है, अभी हमने पहले भी एक रिएक्शन में बताया था कि वो भी क्या है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में लिए जाते हैं एसिड्स को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। However, unlike hydride donors such as lithium aluminium hydride, this reagent reacts faster with acids than with esters, राइट। ये जो रिएजेंट है वो एसिड से जो है वो फास्ट रिएक्शन करता है इन कंपैरिजन टू एस्टर्स। ये यहाँ पर हमने इस रिएक्शन को बता रखा है, ठीक है ना। इस रिएक्शन को जब हम BH3 और इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन जो है एज ए सॉल्वेंट काम में लेकर करते हैं तो यहाँ पर भी प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड does not reduce the free carboxyl group, right? NaBH4, sodium borohydride does not reduce the free carboxylic group, but borane prepared from sodium borohydride and boron trifluoride etherate in THF converts acid to alcohol at 0 to 25 degree centigrade in 89 to 90% yields, right। यदि हम सोडियम बोरोहाइड्राइड को कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन में काम में लेते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पर जो COH ग्रुप है वो CH2OH के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है। लेकिन यदि जो है बोरेन, उसको हम सोडियम बोरोहाइड्राइड और बोरोन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ THF के साथ इस रिएक्शन को जब प्रोसीड करते हैं तो हमको प्राइमरी अल्कोहल्स मिलते हैं, और इस रिएक्शन को 0 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है, और जो मिलने वाला प्रोडक्ट है उसकी जो यील्ड होती है वो नियर अबाउट 90% होती है, राइट। दिस रिएजेंट इज सुटेबल फॉर सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ अ फ्री एसिड ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ एन एस्टर, ठीक है ना। इस जो है रिएजेंट को हम किस तरह की रिएक्शंस के अंदर काम में लेते हैं जहाँ पर कि एसिड के साथ में फ्री जो है वो कोई भी जो है वो एस्टर के साथ में फ्री एसिड समूह प्रेजेंट होता है, राइट। वहीं पर जो है ये जो कैटलिस्ट है उसको हम काम में लेते हैं और हमको प्राइमरी अल्कोहल्स मिलते हैं, राइट। दूसरा भी हमने यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि यहाँ पर जो है कोई भी हम सब्स्टिट्यूटेड जो है एरोमेटिक एसिड लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल ले रखा है पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। इस रिएक्शन को हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में बोरोन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट, राइट, C2H5O ईथरेट इन प्रेजेंस ऑफ THF एट 0 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं तो दिस CO ग्रुप इज़ कन्वर्टेड इनटू CH2, राइट। यहाँ पर हमको ये जो है वो अल्कोहल मिल जाता है, राइट। तो ये जो यहाँ पर हम अनादर जो कैटलिस्ट है सोडियम बोरोहाइड्राइड विद बोरोन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट इन THF भी जो है वो कार्बोक्सिलिक जो एसिड है उनके सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके रिडक्शन प्रोसेस के अंदर काम में लेते हैं और फाइनली हमको अल्कोहल्स मिलते हैं, राइट। Thanks dear students.